Today we are starting the topic atom. The material, when we cut it to the smaller parts, then cut it to two parts. Each part has the same characteristics what the earlier part was having. उसके हम और दो छोटे छोटे टुकड़े करते जाते हैं. जितना भी छोटा टुकड़ा करेंगे उसके पास प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक वही रहती हैं. It does not change. The smallest part of a particle is known as molecule, which has all the properties what a material has. We call it molecule. So this world is full of molecules. Now when we count these molecules, the number is very large. There are millions of molecules around us, millions of material around us. Okay, in physics our stress is to find out the minimum thing with which this world is made of, this universe is made of. So many large number of molecules. We still want to find out how these molecules are made, and that led to the discovery of atoms. And we found that these molecules are made by still smaller particles known as atoms. And the total number of different atoms, there are different type of atoms, we call them elements. And we have in all 92 type of small particles known as atoms. We give them the name elements. So all these elements are only 92 in numbers, and with their different combinations we get different type of molecule, different type of material. So the total material in this universe we have classified down to 92 numbers. What are these 92? These are 92 very small particles known as atoms, and with different combination we make the molecules. So it's a smallest it is the smallest particle, atom. One atom is different from the other atom. So there are different types of atoms. Now again, what is the structure of this atom and what is the difference in this atom? The atoms give different characteristics, and one very prominent characteristic of every atom is the light given by it. If these atoms are present differently, then the light given by them is different. How we recognize an atom? हम एक एटम को पहचानते कैसे हैं? आप इस चीज़ को देखते हैं, ये सफ़ेद है, ये वुडन है, ये ब्लू है, अलग अलग कलर हमको दिखते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें से ऐसी लाइट निकलती है. ये लाइट डिफरेंट क्यों निकलती है और इससे हम इन चीज़ों को कैसे पहचानते हैं? तो इसके लिए हर एटम में ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो डिफरेंट कलर की, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव्स निकालता है, डिफरेंट फोटॉन्स निकालता है. अब हमको पता है कि फोटोन निकालने का मेन रीज़न क्या है. दैट इज ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल. तो इसका ये मतलब है कि एटम के अंदर कुछ ऐसे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो ऑसिलेट करते हैं या ऑसिलेट कराए जा सकते हैं. ऑसिलेशन के लिए किसी चीज़ को डिस्टर्ब करना, मूव करना ज़रूरी है. तो जब हम उसको मूव करते हैं वो ऑसिलेट होता है, तो उसमें से लाइट निकलती है, और उस लाइट से हम ये पहचान लेते हैं कि वो एटम किस चीज़ का है. So this spectra of light, this was a medium to find out, one of the mediums to find out that what type of atom is that. So atom is, the light given by atom is a fingerprint of that atom. Okay, so this was there were different atoms. By many methods we found out that there were 92 type of atoms. Maybe some atoms were not known to us. Now by the end of 19th century, around 1898, J.J. Thomson, a British physicist, he did a lot many experiments to find out
whether atom is the ultimate smallest particle or there are still different particles. Because again I tell you, what was our ultimate aim in the physics? To find out that unit thing, one thing of which this universe is made. हो सकता है एक ही ऐसी चीज हो उससे ये सब एटम बने हो, तो हम हमेशा ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे मॉलिक्यूल बने, ऐसी कौन सी चीज है जिससे एटम्स बने। तो उसके लिए क्या जरूरी था कि हम एटम को तोड़कर देखें क्या उससे भी छोटे पार्टिकल होते हैं या एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। अब इसके लिए बहुत सी चीज़ों ने हमारी हेल्प की। हमने एक तो स्पेक्ट्रम देखे, जो स्पेक्ट्रम हमको ये बताते थे कि हर एटम डिफरेंट होता है। इसका मतलब कि इस यूनिवर्स में, हमारी इस दुनिया में 92 तरह के एटम्स होते हैं, यही सबसे छोटी चीज़ होती है। लेकिन उसके बाद कुछ और एक्सपेरिमेंट सामने आए। एक्सपेरिमेंट ये सामने आए कि जब हम एटम्स को एक्साइट करते हैं मीन्स उसको एनर्जी देते हैं। कैसे देते हैं? उसको गर्म करते हैं, उस पर लाइट डालते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन जाकर उसको हिट करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो उसमें से लाइट निकलती है। लेकिन हर एक में से लाइट निकले ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या ये लाइट इसलिए निकलती है कि एटम टू एटम उनमें कुछ बाइंडिंग होती है और जब हम एक एटम को हिलाते हैं तो आजू बाजू वाले जो दूसरे एटम्स हैं वो उसको खींचते हैं और ये एटम ऐसे वाइब्रेट करता है। इसके वाइब्रेशन से लाइट निकलती है। आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। एटम को जब हम एनर्जी देते हैं ऑसिलेट करने के लिए तो ये एनर्जी हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन के स्ट्राइक करने के फॉर्म में या लाइट फोटोन के फॉर्म में जाती है और जाकर ये एटम में किससे टकराती है? तो एटम के अंदर जब ये एनर्जी जाती है तो वहाँ से लाइट निकलती। इतना हमको पता था। हमने ये भी स्टडी किया हुआ था कि फोटोन जो निकलते हैं वो चार्जेस के एक्सेलरेट होने से निकलते हैं। लेकिन उस समय अगर हमको इसका पता नहीं था, हमको ये मालूम था कि जब हम एटम को एक्साइट करते हैं तो उसमें से लाइट निकलती है और वो उसका कैरेक्टरिस्टिक होती है। सो अभी तक जो हमको ये पता लगा कि मॉलिक्यूल किसके बने हुए रहते हैं? एटम से। मॉलिक्यूल के नंबर मिलियंस और एटम 92। एटम के फिंगरप्रिंट कौन होता है? तो एटम हमको एक स्पेक्ट्रम देता है। अब ये सोचा गया कि अगर एटम ऐसे होते हैं, हमने इसको एक्साइट किया और ये यहाँ पर ऐसे ऑसिलेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सारे एटम्स इसको आपस में खींचकर रखते हैं। इंटर एटॉमिक फोर्स के कारण ये ऑसिलेट होता है। ऐसा सोचा गया। क्या इस ऑसिलेशन के कारण लाइट निकलती है? लेकिन बाद में ये चीज़ भी गलत लगी। क्यों गलत लगी? हमने बाद में और एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा कि एक गैस ट्यूब में हमने बहुत कम प्रेशर में गैस भरी, हाइड्रोजन, हीलियम, वेपर्स, इस तरह की गैसेस बहुत कम प्रेशर में भरी। जब हम बहुत लो प्रेशर में गैसेस भरते हैं तो उसके एटम्स का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि हम ये रूल आउट कर देंगे कि ये इसको या ये इस पर कुछ फोर्स लगा रहा है। अब अगर ये एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाते हैं और अब हम इसको एक्साइट करने के लिए बाहर से कोई चीज़ भेजते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दी, लाइट डाल दी, हीट कर दिया, तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर हमने जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की, रेयरिफाइड गैस की, रेयरफाइड, तब भी इसमें से लाइट निकलती है, तब भी लाइट निकलती है। अब अगर लाइट निकलती है और इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो एक चीज का डिसाइड किया गया कि ये जो लाइट निकलती है ये एटम के वाइब्रेशन से नहीं है। फिर से, कोई भी चीज़ वाइब्रेट क्यों करती है? उसके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक इलास्टिसिटी,
आसपास के दूसरे मॉलिक्यूल्स का फोर्स, आसपास के नेबर्स जो हैं उसका फोर्स जो कि उसको वापस ले आए। दूसरा, उसके पास इनर्शिया होने चाहिए, तभी कोई चीज ऑसिलेट करती है। ये ऑसिलेशन का जनरल प्रिंसिपल है। तो जब हमने एटम को एक्साइट किया, एटम में से लाइट निकली, तो एक थॉट ये भी आया कि ये वाले एटम के फोर्स के कारण ये ऐसे ऑसिलेट करता है और उससे लाइट निकलती है। पर ये चीज को हमने कैंसिल कर दिया। कैसे? हमने रेयरफाइड गैस ली, वेरी लो प्रेशर। जब हम लो प्रेशर पर लेते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि एटम्स का डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि वो एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं, और अगर ये एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाते हैं तो ये एटम ऐसे ऑसिलेट नहीं करेगा एक्साइट करने से। अगर ये ऑसिलेट नहीं करेगा और फिर भी ये लाइट निकालेगा, लाइट तो फिर भी निकलती, और ये हमने गैस ट्यूब के एक्सपेरिमेंट से देखा। ट्यूबलाइट में देखते हैं तो लो प्रेशर होने से जब लाइट निकलती है तो एक चीज तो रूल आउट हो गई कि एटम के ऑसिलेशन से लाइट निकलती है। अगर एटम के ऑसिलेशन से लाइट नहीं निकलती तो फिर लाइट क्यों निकलती है? तो सोचा गया जरूर कोई ना कोई और चीज एटम के अंदर ऐसी होगी जो ऑसिलेट करती है और जिसके कारण लाइट निकलती। ठीक है, लेकिन वो जो चीज है हर एटम में अलग अलग तरह की एनर्जी निकालती है, अलग अलग तरह की एनर्जी निकालती है, और उससे हम उस एटम को पहचानने लगते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन की गैस भरी, प्रेशर कम किया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की, एक पर्टिकुलर लाइट उसमें से निकली, और हमने अपने वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में उसकी लोकेशन देखी। इसी तरह से सोडियम की गैस वेपर्स बना के लो प्रेशर किया और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की, उसकी लोकेशन देखी। हर एटम के लाइट की लोकेशन अलग अलग जगह पर आती है। इससे हमको ये पता चलता है कि हर एटम अलग अलग कलर की, अलग अलग लोकेशन की, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट देता है। बाद में हमको ये भी पता लगा कि वो लाइट सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी की नहीं होती, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज की होती है। और ये चीज़ बाद में बामर नाम के फिजिसिस्ट, जो एक फिजिक्स टीचर थे, उन्होंने ये डिस्कवरी की। देयर इज अ सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रा गिवन बाय एनी पर्टिकुलर एटम। लेकिन ये चीज़ अभी भी अनआंसर्ड थी कि वो लाइट का सोर्स क्या है, क्योंकि एटम जीरो चार्ज का मटेरियल है और वो ऑसिलेशन से लाइट एमिट नहीं कर सकता, और लाइट एमिट करने के लिए एक चार्ज पार्टिकल को ही एक्साइट होकर ऑसिलेट करना पड़ता है, तब वो एनर्जी देता है। दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट टॉपिक, इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, इसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंट्स, ट्यूब वाले एक्सपेरिमेंट हुए, कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट्स हुए, इससे एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई कि एक छोटा सा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, और वो पार्टिकल हर एटम में एक जैसा मिलता है। वेदर वी हैव हाइड्रोजन गैस, वेदर वी हैव क्लोरीन गैस, वेदर वी हैव एनी टाइप ऑफ गैस, वेदर वी हैव वेपर ऑफ सोडियम और एनीथिंग, जब उसका एक्सपेरिमेंट हम ट्यूब में करते हैं, लो प्रेशर गैस, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, तो उसमें से एक पार्टिकल हमेशा हमको एक ही कैरेक्टरिस्टिक का मिलता है। एंड वी ऑल नो द हिस्ट्री। उस पार्टिकल का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन, और ये पता लगा कि एटम कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन सब में एक जैसा ही होता है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है which is same in all the atoms, and it is a particle which is having electric charge. This was a discovery. चूंकि ये हर एटम में मिलता है, इसलिए इसको हर एटम से छोटा होना चाहिए। This must be a constituent of atom. जे थॉमसन ने इस पर आगे काम शुरू किया। उन्होंने ये सोचा कि एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल एटम का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, एटम का नेट चार्ज जीरो होता है। इसका ये मतलब है कि नेट चार्ज जीरो तभी हो सकता है जबकि निगेटिव के साथ में एक पॉजिटिव चार्ज भी हो। तो इससे ये समझ में आया कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल भी होता है। अब दो चीजें हो गई, एक निगेटिव चार्ज का पार्टिकल, एक पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल। निगेटिव चार्ज का पार्टिकल सब में एक जैसा ही होता है, क्योंकि हम कोई भी गैस डालें वो एक जैसा ही मिलता है। हाँ,
पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल हमको अलग अलग चार्ज के अलग अलग मोमेंटम के वो पार्टिकल्स मिला करते थे फॉर डिफरेंट एटम्स। ओके, तो अब ये बात समझ में आने लगी कि ये जो पार्टिकल हर एटम में कुछ ना कुछ एनर्जी रखता है और उस एनर्जी के कारण ही उसकी कुछ लाइट निकलती होगी, लेकिन कितनी निकलती है, क्यों निकलती है, कैसे निकलती है, ये नहीं मालूम था। हमको सिर्फ इतना मालूम था कि अगर अलग अलग एटम को एक्साइट करते हैं तो अलग अलग लाइट निकलती है। जे थॉमसन के बाद उनके डिसाइपल, जो उनके एक स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, उन्होंने इस पे काम किया। रदरफोर्ड के बाद उनकी जो नेक्स्ट डिसाइपल्स थे बोर, उन्होंने काम किया। उसके बाद जाके ये क्लियर हुआ कि वो लाइट कहाँ से निकलती है। वी विल रीच दैट सेक्शन इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक ये हुआ कि जे थॉमसन को ये समझ में आया कि एटम के अंदर दूसरे पार्टिकल जो होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, दो तरह के पार्टिकल होते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग वाज हाउ दे आर प्लेस्ड इनसाइड द एटम। है क्या दोनों ऐसा साइड बाय साइड खड़े रहते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए पार्टिकल रहते हैं, मूव करते हैं, स्टेशनरी होते हैं, कैसे होते हैं? दिस वाज ए बिग क्वेश्चन। तो जे थॉमसन ने उस समय जो उनको समझ में आया उन्होंने बताया। उन्होंने एक मॉडल बनाया, सबसे प्रिलिमिनरी मॉडल, उसका अभी कोई सिग्निफिकेंस नहीं, देयर वाज नॉट मच रीजन अटैच्ड टू इट, पर वी कॉल इट प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस एट रैंडम होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग खीर के अंदर काजू किशमिश डाल देते हैं और उसको हिला देते हैं, उसी तरह से उनका ये कहना था कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, कहीं पर भी एट रैंडम वो रहते हैं। दैट इज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। देयर वाज नॉट मच लॉजिक बिहाइंड इट, पर उसके बाद बाकी जो साइंटिस्ट और आगे आए, उन्होंने देखा कि वो लॉजिकली स्टैंड नहीं करता है। बहुत सारे लॉजिक्स लगाए गए, वो स्टैंड नहीं करता था कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, लाइक दैट। बट एनीवे, थॉमसन डिड नॉट गो बियॉन्ड दैट। तो उनके एक डिसाइपल थे, उनके एक स्टूडेंट थे अर्नस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने फिर उनकी थ्योरी को आगे लेके आगे बढ़ाया और उन्होंने फिर ये सोचा कि वो पॉजिटिव और वो नेगेटिव, ये जो दो पार्टिकल हैं उसके अंदर कैसे लोकेटेड है। सो देखिए साइंस कैसे आगे बढ़ती है। एटम के अंदर एटम से भी छोटा पार्टिकल होता है, ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसको किसने सोचा? थॉमसन ने। सो क्रेडिट गोज टू हिम फॉर दैट। उसके बाद वो दोनों आपस में कैसे रहते हैं, वो अपने लाइफ टाइम में उसको ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाए, उनकी लाइफ खत्म हो गई। उनके स्टूडेंट थे अर्नस्ट रदरफोर्ड, उन्होंने उसी चीज को आगे लेके बनाना शुरू किया। तो बहुत सारी थ्योरीज उन्होंने पुट फॉरवर्ड की। उसमें एक ये था कि पॉजिटिव सेंटर में रहता है, नेगेटिव उसके चारों तरफ रहते हैं, घूमते हैं। पर ये जो थ्योरी थी, इसके पीछे कोई उनका प्रैक्टिकल सबूत नहीं था। और ये थ्योरी कहां से आई? ये थ्योरी हम अपने चारों तरफ देखते हैं, सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, लाइक दैट। So it is a very common sight in our universe that there is one center and due to some force another object is moving around it. Centripetal force के कारण वो चीजें घूमती है। तो लेकिन उनके पास कोई इसका प्रूफ नहीं था। तो ये जो वो एक मॉडल बनाना चाहते थे, इस मॉडल के लिए एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते थे और उनके जो स्टूडेंट्स थे उनको उन्होंने ये बताया कि इस तरह का मॉडल होना चाहिए कि एक जगह पर पॉजिटिव चार्ज और चारों तरफ नेगेटिव चार्ज। ये उनके दिमाग में क्यों आया? जरा लॉजिक सोचने की कोशिश करिए। वो बड़े आसानी से ये भी कह सकते थे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव इससे चिपका, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, एटम बन गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि उसी समय एवोगैड्रो ने भी अपनी रिसर्चेस की, दूसरे लोगों ने भी रिसर्चेस की कि एटम का साइज कितना होना चाहिए। एटम का साइज निकाला गया कि 10 to the power -10
एटम का साइज होना चाहिए गैस में से 10 to the power -10, ये इतना साइज होना चाहिए। अब 10 to the power -10 अगर एक एटम का साइज होता है तो एवोगैड्रो नंबर के अनुसार जितने एटम ये होते हैं, नो आई एम टेकिंग इट द अदर वे, ओके, इतना स्पेस एक एटम लेता है, लेकिन एटम का जो एक्चुअल साइज है वो इतना बड़ा होता है। दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू से, इतने छोटे एटम का इतना बड़ा साइज हो जाना, दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो ये एक चैलेंज था कि एटम का साइज कितना होना चाहिए। तो एटम का साइज बहुत छोटा होना चाहिए, दैट इज व्हाट रदरफोर्ड थॉट। इससे कम 1000 गुना छोटा होना चाहिए। तो फिर एवोगैड्रो से जो ये बनाया गया हाइपोथेसिस, एक एटम इतनी बड़ी जगह क्यों लेता है, अगर उसके अंदर के पार्टिकल बड़े छोटे होते हैं तो एटम इतनी बड़ी जगह कैसे लेता है। सो देयर वेर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दैट, कि एटम के अंदर पार्टिकल की जगह कितनी होती है। जैसे ये 5 उंगली ने कितनी जगह घेर कर रखी है, तो हमने इसको गिन लिया 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 1 1 5 सेंटीमीटर। तो हमने कहा ठीक है, यहां से यहां नापो। 5 सेंटीमीटर से ये हाथ बना है, लेकिन क्या ये हाथ 5 सेंटीमीटर में आता है? आंसर है नो, ये 12 सेंटीमीटर में आता है। ओके, तो 5 सेंटीमीटर एक्चुअल जगह है, बाकी सब कैसा है? खाली। यही गैसेस में भी होता है, एटम यहां है, दूसरा एटम यहां है, बीच की जगह खाली है। अच्छा, उसके बाद एटम का जो साइज निकलता है, काइनेटिक थ्योरी से हमने एटम के साइज भी निकाले। एटम का जो साइज निकलता है, उसके अंदर के जो पार्टिकल हैं उसमें भी यही प्रॉब्लम है, 1000 गुना उनमें डिफरेंस है। 1000 से भी ज्यादा, 10,000 times. The actual particles inside the atoms take very less space and most of the space is empty. ये उनकी हाइपोथेसिस थी, देयर वाज नो प्रूफ ऑफ दैट। तो उसके लिए ना एक एक्सपेरिमेंट वो करना चाहते थे, एंड हिज स्टूडेंट्स डिड दैट एक्सपेरिमेंट फॉर हिम। ये दिस इज नोन एज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उस अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग से पता लगा कि इसका एटम का मॉडल कैसा होना चाहिए। एटम का जो मॉडल रदरफोर्ड ने बनाया, उनका ये कहना था कि जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो एक ही लोकेशन पर कंसंट्रेटेड होते हैं और नेगेटिव पार्टिकल उसके चारों तरफ घूमते हैं, एंड देयर इज लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन दैट। दिस इज व्हाट ही थॉट। लेकिन उसके लिए उनको बहुत सारे प्रूफ चाहिए थे। एटलीस्ट ये प्रूफ तो चाहिए था कि पॉजिटिवली चार्ज सारे के सारे चार्ज एक ही जगह पर होते हैं, और अगर एक ही जगह पर होते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि अगर वो सब पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करके भाग क्यों नहीं जाते। बट स्टिल ही हैड दिस, कि एक न्यूक्लियस होता है जिसके पास पूरे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए इट वाज वेरी नेसेसरी कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए, और वो एक्सपेरिमेंट हमको बताए कि वाकई जो भारी चीज है, क्या कुछ ऐसा होता है कि एक ही जगह पर पूरे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, या पॉजिटिव सब जगह फैले रहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल जैसे। इसलिए देयर वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज डन एंड व्हिच शोड दैट the nucleus exists at one location and all other places are empty. पूरे एटम में खाली जगह बहुत ज्यादा होती है और पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पर होता है। ओके, ये एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किया था वो उनके स्टूडेंट थे, एंड दैट एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय गीगर एंड मार्स्टन, hence Geiger and Marsden. So we will study that experiment, Geiger and Marsden experiment. Okay, देखिए इसमें उन्होंने ये गोल्ड फॉयल ली, गोल्ड फॉयल, और उसको 2 ब्लॉक में बांध दिया। ये एक ऐसे गोल्ड फॉयल ऐसे 2 तरफ से बॉक्स लगा के इसको पकड़ लिया,
Okay, that's all. This is very, very thin gold foil, less than a micrometer, and this is almost 10 to the power minus 7. Okay. Yeah. This is 2.1 10 to the power minus 7 मीटर. इतनी पतली ये बना सके, जितनी पतली बना सकते थे. गोल्ड फॉयल जब इतनी पतली हो जाती है, इट बिकम्स सो थिन दैट वी कैन सी अक्रॉस इट, ट्रांसपेरेंट हो जाती है और हमको पता ही नहीं चलता कि यहां पर कुछ है, इतनी ट्रांसपेरेंट हो जाती. ठीक है, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्ट करने के लिए एटम ही नहीं बचते, इतनी दूर दूर एटम होते हैं. और ये एकदम पेपर जैसे, इट बिकम्स ए फॉयल, और ट्रांसपेरेंट भी हो जाती है, इतनी पतली होती है. और गोल्ड ही क्यों लेते हैं? दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. द आंसर इज दैट इट इज गोल्ड ओनली विच हैज परमेबिलिटी. उसको अगर हम ऐसे फैलाते जाएंगे तो वो फैलती जाएगी. क्या बोलते हैं आप उस प्रॉपर्टी को? नो, डक्टिलिटी. दैट्स राइट, डक्टिलिटी. तो वो क्या? मैलिएबिलिटी. करेक्ट. तो उसको हम जितना भी पतला करेंगे वो बिना क्रैक हुए फैलता चला जाएगा. ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसमें है? गोल्ड में, इसलिए गोल्ड लिया गया. प्लस गोल्ड का वेट बहुत ज्यादा होता है, तो इसके जो एटम हैं उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या जो भी इसके अंदर मेटल होगा, एटम है, दैट इज ए वेरी हैवी मेटल. इसलिए गोल्ड को चूज किया. क्या? बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन. मैलिएबिलिटी, इट कैन बी स्प्रेड विदाउट क्रैकिंग, प्लस इट्स वेट इज वेरी लार्ज, मास इज वेरी लार्ज. ओके, यहां पर इसको हमने ऐसे स्क्रीन जैसे लगा दिया और यहां से हम इस पर अल्फा पार्टिकल थ्रो करना चाहते हैं जो कि इससे टकराएंगे. सोचना यह था कि इसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, ये जो अल्फा पार्टिकल हैं, ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं. ये जब उससे टकराएंगे तो टकराकर रिफ्लेक्ट होंगे. दिस वाज द थिंकिंग. ओके, तो हमको अल्फा पार्टिकल भेजना था. अल्फा पार्टिकल का हमने सोर्स लिया एंड दैट सोर्स वाज रेडियो एक्टिव मटेरियल. सो व्हाई रेडियो एक्टिव मटेरियल वाज टेकन? इट यूज्ड टू गिव आउट अल्फा पार्टिकल्स एट इट्स ओन. हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसमें से अल्फा पार्टिकल निकलते रहते हैं. अल्फा बीटा सब निकलते हैं. वी आर कंसर्न विद अल्फा पार्टिकल्स. ओके, उसके बाद हम ये जो अल्फा पार्टिकल तेजी से निकलते हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाकर इसको हिट करें और किसी चीज को डैमेज मत करें, इसलिए इसको हम ये इसके अंदर रखते हैं. दिस इज ए कंटेनर मेड ऑफ लेड, और उसमें सिर्फ एक ओपनिंग देंगे, यहां से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे. ये अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, यहां निकल के हो सकता है कुछ ऐसे निकल रहे हो, कुछ ऐसे निकल रहे हो. तो उसके बाद में हम ये लेड की ब्रिक्स लगा देते हैं, लेड के ब्लॉक्स लगा देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे. उससे क्या है, जो इधर जाएगा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये भी एब्जॉर्ब हो जाएगा. लास्ट में जो यहां से निकलेगा वो वाले पार्टिकल होंगे जो यहां से निकले और यहां तक आए, तो उनकी डायरेक्शन कैसी हो गई? स्ट्रेट. ये डायरेक्शन को स्ट्रेट करने का जो एक्शन होता है, ये जो करता है उस चीज को हम बोलते हैं कॉलीमेटर. कॉलीमेटर ये हम माइक्रोस्कोप में भी यूज करते हैं, टेलीस्कोप में भी यूज करते हैं. तो कॉलीमेटर का एक्शन क्या है? स्ट्रेट लाइन कर देना, मोशन को स्ट्रेट लाइन कर देना. तो ये इस तरह से इस मोशन को स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं. ठीक है, इसका तो ये सोर्स हो गया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. इसका इतना ही काम है. इससे हम डायरेक्शन ले लेते हैं कि इसी डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं. इन अल्फा पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी है उसके कैलकुलेशन के हमारे पास तरीके हैं, एंड वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट एनर्जी विद दिस अल्फा पार्टिकल्स बाय डिफरेंट मेथड्स. ओके, ये अल्फा पार्टिकल इसको हिट करते हैं. अब हिट करने के बाद ये कहां गए, इसको देखने के लिए हमने एक डिटेक्टर बनाया. इसके चारों तरफ एक रिंग लगाई, प्लेट लगाया, और ये डिटेक्टर इस पे ऐसा चल सकता है. इस डिटेक्टर में सामने एक स्क्रीन है
उस स्क्रीन में जिंक सल्फाइड पेंट किया हुआ है। अगर उसके ऊपर कोई अल्फा पार्टिकल आता है उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, अपनी एनर्जी उसको देगा और ये थोड़ी देर तक जिंक सल्फाइड चमकता रहेगा। इससे हमको क्या इंडिकेशन मिलेगा कि यहां पर एक अल्फा पार्टिकल आया। अगर 4 आ गए तो उसको हम काउंट कर लेंगे, दैट 4 अल्फा पार्टिकल्स हैव कम। इस तरह से अल्फा पार्टिकल को हम यहां डिटेक्ट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। हम चाहें तो ये पूरी स्क्रीन जिंक सल्फाइड की बना सकते हैं। उससे हमको ये पता लगेगा जहां जहां चमक रहा है वहां वहां ऑब्जर्व करके कितने कितने पार्टिकल वहां पर आ रहे हैं। ओके, ये चीज समझ में आ गई। तो अल्फा पार्टिकल जहां से भी जाएंगे हमको नजर में आ जाएगा कि कहां से जा रहे हैं, क्योंकि जिंक सल्फाइड वहां पर ग्लो करेगा। अच्छा, अब ये अल्फा पार्टिकल हमने यहां पर भेजे और इसको देखना शुरू किया। देखकर उन्होंने इसको काउंट किया कि यहां से एंगल बनाया, ये यहां पर इसको रखा तो यहां पर इसका एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। फिर जब ये इसको यहां पर लेकर आ गए तो यहां पर ले आए, एंगल कितना हुआ, 45 डिग्री। फिर इसको यहां पर लाए, एंगल कितना हुआ, 90। फिर यहां पर लाए 120। ऐसे अलग अलग एंगल पर रखा और वहां पर जितनी बार अल्फा पार्टिकल आए उसको उन्होंने काउंट कर लिया। तो उनके पास डाटा क्या तैयार हो गया, अल्फा पार्टिकल एंड एंगल। सो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज ए फंक्शन ऑफ एंगल। और इसके बेसिस पर उन्होंने टेबुलेट किया और टेबुलेट करके एक टेबल बनाया कि कितने एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल निकले। उस टेबल को देखकर फिर हम अपने कंक्लूजन बनाते हैं। तो वो टेबल देखिए, कितने एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल आए, इसका हमने एक टेबल बनाया। इन दिस एक्स एक्सिस वी विल गिव स्कैटरिंग एंगल, ये स्कैटरिंग एंगल, और यहां पर हमने दिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, इस ग्राफ में दोनों उन्होंने टेबुलेट कर, ये ग्राफ बना। इसमें हमने एक्स एक्सिस पर लिया है डिफरेंट एंगल। यहां से जो स्ट्रेट जाएंगे ये एंगल कितना होगा, इस लाइन के साथ 0, जो यहां मुड़ेंगे 90 और जो पूरा मुड़ जाएंगे 180। जो इस तरफ मुड़ेंगे उसके लिए भी यही रखा, 0, 90, 180। ठीक है, तो उसको हमने टेबुलेट कर लिया, टेबल बनाया, एंगल एंड अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स इधर। ओके, अब देखिए ये अलग अलग रीडिंग हमको मिली, 0 से 20 डिग्री, 0 से 10 डिग्री। 0 से 10 डिग्री के अंदर कितने पार्टिकल थे, 10 टू द पावर 7। ठीक है, 10 टू द पावर 7, 1 मिलियन पार्टिकल इसमें सीधे चले गए थे बिटवीन 0 टू 10, 1 मिलियन। उसके बाद ये हो गया 100,000, यहां तक 20 डिग्री। तो आप देखिए ये है 10 टू द पावर 7, 10 लाख, 1 लाख, 10,000। इतने पार्टिकल कम होते चले गए 20 डिग्री के अंदर। और अगर हम 20 डिग्री से ज्यादा इसको यहां पर लेकर आए, मोर देन 20 डिग्री यहां पर लेकर आए, तो सिर्फ कितने पार्टिकल मिले, 1000, 1000। इससे क्या कंक्लूजन मिलता है कि 0 डिग्री विद इन 10 डिग्री क्या होता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट। तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट कितने पार्टिकल निकल गए, 10 लाख, और मुड़े कितने, बहुत कम, 10 टू द पावर 2, 100 पार्टिकल। 100 पार्टिकल ऐसे थे जो 90 डिग्री पर मुड़े। टोटल कितने में से, 10 लाख में से। तो इसलिए इससे कंक्लूजन क्या निकला कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल कहां जाते हैं, स्ट्रेट चले जाते हैं बिना मुड़े हुए। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्जेस के मोस्टली कैसे चले गए, स्ट्रेट। अब
ये कंक्लूजन निकला और इसको थोड़ा फिगर्स में नोट करते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स passed through straight without deviation. Without deviation का मतलब क्या होता है? No force acting. दूसरा इसका मतलब क्या होता है? No collision. अगर ये किसी से टकराते मुड़ जाते, कोई फोर्स इन पर लगता तो भी मुड़ जाते, पर ये सीधे चले गए, मतलब इन पर कोई फोर्स नहीं लगा और न ही इनका किसी के साथ कोलिजन हुआ। ये ए वेरी स्मॉल पार्ट डिफ्लेक्टेड, a very small part deflected, 1 out of 8,000। अगर 8,000 सीधे निकलते हैं तो सिर्फ एक पार्टिकल उसमें से मुड़ता है वापस, और वी कैन से इट इज रिफ्लेक्टेड। अब कितने कितने एंगल पर कितने कितने पार्टिकल आते हैं ये इस ग्राफ से क्लियर है, पर ये तो समझ में आता है दैट देयर आर वेरी स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल विच कम बैक। तो ये हमारा इसमें एक ऑब्जर्वेशन था। अब इस ऑब्जर्वेशन से हमको क्या पता लगता है? मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू विदाउट डेविएशन विद इन 1 डिग्री। मोस्टली पार्टिकल 1 डिग्री के अंदर ही निकल गए उसमें से बिना डेविएशन के। ओके, सो एक्चुअली शुरू में जब रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट कराया था, उन्होंने अपनी लैब में किया था, तो उन्होंने तो ये कंक्लूजन निकाल लिया कि सारे पार्टिकल स्ट्रेट चले जाते हैं और उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकला, मतलब कुछ समझ में नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो उनके साथ में ना एक स्टूडेंट था, ही वाज अंडर ग्रेजुएट, वो अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुआ था, 20 साल का, उसका नाम था मास्डन। तो ये इसको बहुत शौक था साइंस का और वो खेलता ही रहता था, तो उसने वो एक्सपेरिमेंट छोड़ा नहीं, उसने बोला कि चलो मैं भी करूंगा। ऐसे ही शौक किया, मैं भी करूंगा, करने लगा और अपनी नोटबुक पे नोट भी करते गया। तो उसने देखा कि एक आध पार्टिकल कोई मिल गया जो कि 180 डिग्री पर वापस आ गया, ऐसे 180 वाला 120 वाला वापस आया, हजारों में लाखों में एक, हजारों में एक वापस आया। उसने नोट कर लिया, उसने कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब एक बार रदरफोर्ड के सामने बात हुई तो उसने बताया कि मैंने ऐसा किया था, एक वापस आया था। तो रदरफोर्ड वाज वेरी शार्प, उसने बोला अगर एक भी वापस आया था तो क्यों आया था? सबको निकलना चाहिए था अगर निकलना होता तो। अगर एक वापस आया, देयर हैज टू बी ए रीजन। तब फिर वो उसके पीछे लगे, फिर उसको दोबारा करवाया, 3 बार करवाया और उसके बाद उन्होंने उसके कंक्लूजन निकाले। तो ये चीजें देखने के बाद कंक्लूजन क्या निकला? एक तो ये कंक्लूजन था कि ये जो गोल्ड है ये हमने इतना पतला क्यों किया। उनका ये था कि गोल्ड जब टूटेगा तो एक एटम दूसरे एटम से सेपरेट हो जाएगा, बीच में हवा आ जाएगी। हमने उसको टूटने नहीं दिया, लेकिन इतना पतला कर दिया कि और पतला करेंगे तो टूट जाएगा। इस सिचुएशन से क्या पता लगता है कि हमने उसको इतना पतला कर दिया है, जैसे कि देखिए ये ऐसे था, ये इसके बाजू में एक शीट बनी हुई है, ऐसी शीट,
इस शीट को हमने पतला किया तो ये चला गया, अब इतनी पतली हो गई ये शीट, ऐसे 2 2 2 2 ये शीट आ गई। और पतला किया 1 1 1 1 1, अभी भी शीट टूटी नहीं है, ऐसे आ गए ये सब, एक के बाद एक के बाद एक। पहले कितने कितने थे? 2 2, उसके पहले 3 3, पतला करते गए 1 1 1। अब अगर हम इसको और पतला करते हैं, टूट गया। तो टूटने के पहले एक स्टेज वो आएगी जब हम ये मान सकते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी है, 1 एटम की थिकनेस है। हम उसको देख नहीं सकते, पर ये हम जान सकते हैं कि अगर वो नहीं टूटा है और टूटने वाला है तो उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 1 एटम। ये उन्होंने इसको किया, जितना पतला कर सकते थे किया, मान के चले कि इसकी थिकनेस कितनी है, इक्वल टू 1 एटम। अब वो 1 एटम सामने है, उस 1 एटम में यहां से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं और इधर निकल जाते हैं। अगर ये यहां से गए और इधर निकल गए तो इसका मतलब क्या है, ये जगह कैसी है, खाली है। एक एटम यहां, थिकनेस 1 एटम है, दूसरा एटम यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा है, ऐसा होगा। हम सिर्फ एक एटम की बात सोच रहे हैं कि ये जो अल्फा पार्टिकल जाते हैं, ये अल्फा पार्टिकल जाकर अगर किसी चीज से टकराएंगे तो वापस आना चाहिए, अगर नहीं टकराएंगे तो निकल जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू, तो उसका कंक्लूजन ये निकला दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम, विद इन द एटम इज एम्प्टी। नंबर 1। नंबर 2, थोड़े से पार्टिकल उसमें से वापस आए, उसका मतलब अल्फा पार्टिकल का वापस आना एक बहुत बड़ी चीज है। क्यों? नंबर 1, अल्फा पार्टिकल इज वेरी हैवी। कोलिजन में कौन सी चीज आपको वापस ला सकती है? आंसर, जो हमारे से बहुत ज्यादा भारी हो। जैसे एक फुटबॉल आया और उसने इस ग्लास को ऐसे हिट किया, क्या वो फुटबॉल रिबाउंड होगा? नहीं होगा। पर अगर वो फुटबॉल जाके उस दीवार को हिट करेगा तो रिबाउंड होगा, क्योंकि दीवार कैसी है, बहुत भारी। ये समझ आया? तो स्ट्राइकर से हम कैरम बोर्ड में हिट करते हैं, गोटी को मारता है तो गोटी को मारकर वो वापस नहीं आता, स्ट्राइकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो बाउंड्री को मारता है, उसके बॉर्डर को हिट करता है तो रिफ्लेक्ट होता है, बिकॉज बॉर्डर इज वेरी हैवी कंपेयर टू स्ट्राइकर। तो जब दो चीजों में कोलिजन होता है तो रिफ्लेक्शन क्या दिखाता है कि सामने वाली चीज बहुत भारी है, अदरवाइज वो हिट करेगा और लेके चला जाएगा आगे। तो ये सोचा गया कि अगर अल्फा पार्टिकल वापस आता है, इसका मतलब सामने जरूर कोई उससे बहुत भारी चीज है जो उसको वापस ला सकती है। और हमको ये मालूम है कि गोल्ड के पास 79 पॉजिटिव चार्जेस होते। तो अगर ये अल्फा पार्टिकल विद 2 पॉजिटिव चार्जेस एंड मास इक्वल टू 4 ये जा रहा है, इसके सामने 80 वेट वाली कोई चीज आएगी तो क्या होगा? वापस आएगा। लेकिन अगर वो चीज 2 वेट वाली होगी, 4 वेट वाली होगी तो क्या करेगा? हिट करके उसको भी साथ में ले जाएगा, वेलोसिटी थोड़ा कम हो जाएगी पर सीधा चला जाएगा। ये सिचुएशन सोच में आ रही है? तो अब आप ये सोचिए, रीजन आप क्या निकालेंगे? एक एटम के पास 80 नंबर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, 80 नंबर्स। अगर वो सब ऐसे अलग अलग हैं, अल्फा पार्टिकल गया, इसको हिट किया, इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हुई, लेकिन ऐसा चला गया, थोड़ा सा ऐसा चला गया। वापस आने का मतलब क्या है? सामने दीवार है। दीवार कैसे बन सकती है? दीवार बनने का तरीका है पूरे के पूरे 80 एक साथ ऐसे चिपके, तब वो दीवार है, अल्फा पार्टिकल टकराएगा और वापस आएगा। और अगर ये बिखरे हुए हैं, जिससे टकराएगा उसको हिट करके आगे चला जाएगा। और देखा क्या, 10 लाख में से कम एक पार्टिकल ऐसा है जो वापस आया, बस उसी से पता लग गया कि सामने क्या है? दीवार है। दीवार का मतलब क्या है? सारे के सारे जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं एक जगह पर इकट्ठे, राइट? तो
तो एक जगह पर इकट्ठे रहने से दो चीजें होती हैं, एक उसका मास इतना है कि ये हिट करेगा, जा नहीं पाएगा, वापस आएगा, दूसरा इतने सारे पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रोस्टैटिकली रिपेल करेंगे, तो ये तो पहुंच ही नहीं पाएगा, ऐसा जाएगा और रिपल्शन के कारण वापस आ जाएगा, लेकिन इतना चार्ज होना चाहिए कि इसको रिपेल कर सके। तो इससे रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बिखरे हुए नहीं हैं, इकट्ठे। एक चीज, ये जो इकट्ठे चार्ज रहते हैं कहां पर हैं एटम में, तो बड़ा ऑब्वियस है कि अगर एटम ऐसा है गोल, तो ये पॉजिटिव चार्ज एक किनारे पे क्यों होंगे? पहला पॉइंट है इसमें, स्पेस इन द एटम इज मोस्टली एम्प्टी, ये आप लोग समझ गए? ओके, ओनली 0.14 1 डिग्री से बाहर गए, बाकी सब 99.86% स्ट्रेट गए, दैट मीन्स उतनी जगह खाली थी। अच्छा, एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर टुगेदर एट वन लोकेशन एट द सेंटर, ये एक कंक्लूजन हमने निकाला। ये कंक्लूजन कैसे निकला? तो इस कंक्लूजन का रीजन क्या था कि उस लोकेशन को हमने नाम न्यूक्लियस दिया और हमने ये माना कि पूरा पॉजिटिव चार्ज और मास उस एक लोकेशन पर है। इसका रीजन क्या था? अल्फा पार्टिकल्स हैवी होते हैं, पॉजिटिवली होते हैं, और अगर इनको किसी ने रिफ्लेक्ट किया तो क्या होना चाहिए? उसका मास भी ज्यादा होना चाहिए और उसके चार्ज भी बहुत ज्यादा होने चाहिए। इसलिए कंक्लूजन ये निकाला दैट ऑल द पॉजिटिव चार्जेस एंड मास आर लोकेटेड एट वन प्लेस एंड नेचुरल चॉइस वाज सेंटर एंड दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। एक चीज और इसको सपोर्ट करती है, काइनेटिक थ्योरी जो आपने क्लास 11 में पढ़ी, उससे हमने निकाला कि गैस का जो वॉल्यूम होता है, वन एटॉमिक वेट का जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर आपने पढ़ा है। ओके, उसके बेसिस पे अगर हम उसमें नंबर ऑफ एटम्स को डिवाइड करें तो एक एटम का वॉल्यूम कितना आता है? 10 to the power -10। काइनेटिक थ्योरी से काइनेटिक थ्योरी साइज इतना आना चाहिए, लेकिन हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट में अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो साइज आया वो कितना आया? 10 to the power -14, विच इज नियरली 10,000 टाइम्स लेस। इसका मतलब है कि इतना स्पेस खाली होता है, सिर्फ इतनी सी जगह में एटम होता है, बाकी स्पेस खाली है, विच इज 10,000 टाइम्स द साइज ऑफ वन न्यूक्लियस। ओके, सो दीज वेयर कंक्लूजन्स बाय द रदरफोर्ड। अब ये कंक्लूजन में कुछ और चीजें हम इस एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे कि ये कंक्लूजन किस तरह से निकाला गया, उसे देखिए। अल्फा पार्टिकल यहां सेंटर में भी जा रहे हैं और उसके डिफ्लेक्ट होके उसके चारों तरफ भी जा रहे हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल यहां से जो इस रास्ते पर आ रहे हैं थोड़े से डिफ्लेक्ट होते हैं और ऐसे चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल मुड़े
और मुड़कर इस डायरेक्शन में चले गए। ये न्यूक्लियस को मैं बहुत बड़ा करके दिखा रहा हूं। अब इसे देखिए, ये अल्फा पार्टिकल, इससे इसका रास्ता इतनी दूर है, ये जब ये इसके पास आता है, इस डिस्टेंस के कारण इस पर फोर्स लगता है। इसका ये जो रास्ता है, इसे देखिए, ये इसके बहुत नजदीक है, तो ये जब इसके क्लोज पहुंचता है तो इस पर ज्यादा फोर्स लगता है। ये वाला जो आएगा, इसका डिस्टेंस इससे ज्यादा है तो इस पर लगने वाला फोर्स कम होगा। तो अगर मैं ये कहूंगा कि ये 1 2 3 4 5, ये 5 अल्फा पार्टिकल गए, तो सबसे कम फोर्स किस पर लगेगा और सबसे ज्यादा किस पर लगेगा? जो सबसे दूर है उस पर सबसे कम फोर्स लगेगा, तो नंबर 1 पे सबसे कम फोर्स लगा, वो सीधा चला गया। सबसे ज्यादा फोर्स जितना नजदीक होगा, 2 उससे ज्यादा नजदीक है, इस पर इसका फोर्स लगा, थोड़ा सा ये मुड़ गया। मुड़ेगा क्यों? क्योंकि डिफ्लेक्शन होगा। ओके। नंबर 3 पर भी रिपल्शन का फोर्स लगा, उस रिपल्शन के कारण ये और ज्यादा मुड़ गया। नंबर 4 बहुत पास था, इस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगा, इतना फोर्स लगा कि ये इधर मुड़ गया। और नंबर 5, ये तो बिल्कुल उसकी लाइन में जा रहा था, ये यहां पर ऐसा जाता, ये गया और इससे रिफ्लेक्ट होके पूरा वापस ही आ गया 180 पे। फिर से ये जो यहां पर है, ये वाला, ये ऐसा मुड़ जाएगा। इससे दूर वाला जो है वो इससे कम मुड़ेगा, इससे दूर वाला और कम मुड़ेगा, और ये वाला स्ट्रेट चला जाएगा। ये होता है ट्रेजेक्ट्री ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। तो इसमें आपको देखना है सीरियल उल्टा हो रहा है, जो ज्यादा दूर है वो कम डिफ्लेक्ट होता है और जो नजदीक है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन पैटर्न। इस डिफ्लेक्शन पैटर्न में एक टर्म हम लेते हैं, ये जाता है, इसके साथ इंपैक्ट होगा। एक हमने इसमें क्वांटिटी बनाई, ये मुड़ता क्यों है? क्योंकि इसका इंपैक्ट होता है, भले फिजिकल इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन पॉजिटिव को रिपेल करता है। ये ऐसे स्ट्रेट आ रहा था यहां से, इसने इसको रिपेल किया, उसी रिपेल को हम बोलेंगे इंपैक्ट हुआ। इसका जैसे ही धक्का लगा ये ऐसा मुड़ गया, तो ये इंपैक्ट के कारण मुड़ता है। तो जब ये इंपैक्ट होता है, जिस इंपैक्ट के कारण ये मुड़ता है, उसका हमने एक नापने के लिए पैरामीटर बनाया, दैट इज नोन एज इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर क्या क्वांटिटी होती है? इसका रास्ता देखिए, ये और ये इसका सेंटर, इन दोनों को ये मिलाकर ये जो डिस्टेंस बनेगा b, दिस डिस्टेंस इज नोन एज इंपैक्ट पैरामीटर ऑफ पार्टिकल नंबर 3। तो पार्टिकल नंबर 4 का इंपैक्ट पैरामीटर कौन सा होगा? ये वाला। दिस इज इंपैक्ट पैरामीटर ऑफ पार्टिकल नंबर 4। ये तो जिसका इंपैक्ट पैरामीटर जितना छोटा होगा, उसका डिफ्लेक्शन का एंगल उतना ज्यादा होगा। ये होता है इंपैक्ट पैरामीटर। तो ये पहली डेफिनेशन हम नोट कर लेते हैं। इंपैक्ट पैरामीटर
is perpendicular distance between direction of alpha particle ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन से सेंटर का जो नॉर्मल डिस्टेंस है दैट इज नोन एज इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, ओके। तो ये इंपैक्ट पैरामीटर, अब इसमें हम एक और क्वांटिटी लेते हैं एंड दैट क्वांटिटी इज द मिनिमम डिस्टेंस जहां से ये वापस आता है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वांटिटी इज distance of closest approach. Distance of closest approach, इसका हमने सिंबल बना दिया D। ये D कहां पर होता है? ये उस अल्फा पार्टिकल के रेफरेंस में है। ध्यान दीजिए, उस अल्फा पार्टिकल के रेफरेंस में जो बिल्कुल उसके सेंटर की डायरेक्शन में जाता है। जो इसके सेंटर की डायरेक्शन में जा रहा है, नंबर 5, ये इधर या इधर रिफ्लेक्ट ना होके वापस आ गया। ये जिस डिस्टेंस से वापस आता है, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इतना नजदीक और कोई भी अल्फा पार्टिकल नहीं पहुंचा। तो जो अल्फा पार्टिकल सबसे नजदीक पहुंचेगा उसका जो डिस्टेंस है दैट विल बी नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बस। सो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच D फॉर एन अल्फा पार्टिकल इन द लाइन to center, in the line to center of nucleus is the distance between center of nucleus and the particle where it stops and return back. ये होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका यूज एक होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, दिस डिस्टेंस गिव्स अप्रोक्सीमेशन of size of nucleus। ये न्यूक्लियस के साइज का अप्रोक्सीमेशन हमको बताता है। हाँ जी, ठीक है, ओके। ये दो चीजें आपने नोट की। इस पर कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि एटम में ये दो चीजें क्या होती हैं। अच्छा, अब
इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि ये साइज के बारे में कैसे बताता है। ये यहां से यहां का साइज मान लीजिए, यहां से यहां का साइज 4 है, 4 यूनिट्स। ये पार्टिकल यहां से आया और यहां से वापस चला गया, ये साइज है 9, यहां से लेके यहां तक। अब हमने एक पार्टिकल भेजा, इससे 9 डिस्टेंस से ये पार्टिकल वापस आ गया, तो हमको ये पता लगा कि ये वाला जो पार्टिकल है ये 9 से बड़ा नहीं हो सकता, 9 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर ये 9 से बड़ा होता तो ये इससे टकरा के यहीं से वापस आ जाता। ये कितना है 10, लेकिन ये कहां से वापस आया 9 से, इसका मतलब 9 तक की जगह खाली थी। हमने एक दूसरा पार्टिकल भेजा, वो जो दूसरा पार्टिकल भेजा वो भी गया और जाकर वो यहां से वापस आ गया, और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच 7, इसका मतलब इसका साइज किससे छोटा है, 7 से छोटा है। नहीं तो अगर 7 से बड़ा होगा इसका साइज तो यहीं से टकरा के आ जाएगा। फिर हमने तीसरा पार्टिकल भेजा और वो पार्टिकल गया और ऐसे जाके 6 डिस्टेंस से वापस आ गया, 6। इससे हमको क्या पता लग गया कि ये वाला जो मटेरियल है इसका रेडियस किसके अंदर है, 6 के अंदर। तो अगर हमसे पूछा कोई कि भाई इसका रेडियस 12 होगा, 10 होगा या 5 होगा, 3 में से एक चॉइस करो, तो आप क्या चॉइस करोगे, 5। क्यों? क्योंकि 6 तक तो हम जाके वापस आए हैं और वहां तक उससे टकराया नहीं, इसका मतलब उसका साइज 6 से छोटा है। तो हमने ज्यादा से ज्यादा पावरफुल अल्फा पार्टिकल भेजकर देखे, वो कहां से वापस आए, वो वापस आए 10 to the power -14, 10 to the power -14 से अगर वो वापस आता है तो हमको क्या पता लगता है कि न्यूक्लियस का साइज 10 to the power -14 है, ठीक है, उससे बड़ा नहीं है। तो इस तरह से हमको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या बताता है, अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द न्यूक्लियस, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अच्छा, अब इसके बीच में ये सारे कंक्लूजन निकालने के बाद रदरफोर्ड ने जो मॉडल बनाया, रदरफोर्ड मॉडल, तो रदरफोर्ड का ये कहना था कि इस मॉडल में पॉजिटिव चार्जेस, न्यूक्लियस सेंटर होगा एटम का और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऑर्बिट में घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इनके बीच का सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होगा, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्लस और माइनस के बीच में ये, इसलिए ये सब आपस में चिपके हुए नहीं होते। तो अगर कोई चीज आपस में चिपकी हुई नहीं है और उन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो कैसे हो सकता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बाद भी वो दोनों चिपक नहीं रहे, यही प्रॉब्लम था। हमने एक निकाला, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है न्यूक्लियस, दोनों एटम के अंदर हैं और दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है, क्योंकि एटम का साइज 10,000 टाइम्स बड़ा आ रहा है न्यूक्लियस के साइज से। अगर इतना बड़ा साइज है तो बाकी चीजें दूर दूर हैं, तो क्यों है, प्लस और माइनस एक दूसरे को खींच क्यों नहीं लेते। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के बावजूद दो चीजें एक दूसरे से दूर कैसे रह सकती हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सन और अर्थ। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फिर भी दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं, और दूर रहने का ये मेथड हमको मालूम है। ये मेथड कब होता है, जब कोई चीज ऑर्बिट में घूमती है सैटेलाइट के फॉर्म में, तो उसके पास एक एनर्जी भी होती है, उस वेलोसिटी और एनर्जी के कारण वो स्ट्रेट जाना चाहती है, एक फोर्स उसको खींचता है, इसलिए वो लगातार मुड़ते जाती, तो एक डिस्टेंस भी मेंटेन हो जाता है, चिपकते भी नहीं है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहता है और वो गोल घूमते रहती।
तो जब रदरफोर्ड ने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्जेस मिल रहे हैं, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और दोनों के बीच डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, तो जरूर ये कैसा मॉडल होना चाहिए, जैसा सन और अर्थ का मॉडल होता है, सैटेलाइट का मॉडल होता है। इसलिए उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस हम पहले कंक्लूड क्या कर चुके थे, इकट्ठा होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने बोला कि ये इकट्ठे कहां होंगे, जरूर ये सब सेंटर पे इकट्ठे होंगे और इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ घूमेंगे। ये इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने आइडिया निकाला और ये एक सबसे पहली प्रिलिमिनरी शेप उन्होंने डिसाइड की, जिसको हम लोग और आगे मॉडिफाई कर करके पढ़ते जाते। तब ये फैसला हुआ कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे हैं और ये सब जगह खाली है। तो यहां से जब अल्फा पार्टिकल जाते हैं, इसमें से चले जाते हैं, क्योंकि ये तो बहुत थोड़ी सी जगह पर है, बहुत थोड़ा सा स्पेस इसने लिया हुआ है। सो दिस वाज रदरफोर्ड्स मॉडल। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन और ये इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगता है, तो इसको नोट करिए, दैट इज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट और द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। यहां पर Q1 कौन है, तो यहां पर Q1 एक इलेक्ट्रॉन और Q2 सॉरी Q1 Q2 ना, मैं इसको नहीं लेता अभी मैं लेता हूं अल्फा पार्टिकल। सॉरी, लेट्स टेक इट दिस वे, फोर्स बिटवीन, ये पहले इसको करते हैं, बाद में इलेक्ट्रॉन को करेंगे। ये वाला डिस्टेंस हमको मालूम है कितना, d। अगर ये डिस्टेंस d है तो ये फोर्स कितना होगा, दिस फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2। Q1 है अल्फा पार्टिकल जिसका चार्ज कितना होता है 2e, ये Q2 ZE उसका चार्ज है जो हमने वहां पर मटेरियल लिया। जैसे हमने अगर लिया गोल्ड, तो गोल्ड का कितना होगा 79, सो दिस विल बी 79। पर अभी हम इसको क्या लिख रहे हैं, Z। Q1 Q2 अपॉन R²। ये अगर हम इसको सिर्फ उसके टर्म में ही लिखें जो फॉर्मूला की टर्म है, सो दिस विल बी वट एवर इज द डिस्टेंस R। ये फोर्स का फॉर्मूला, तो इसको आप लिखिए फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस। ये इनके बीच फोर्स का फॉर्मूला। और ये कैसा फोर्स होगा, रिपल्शन या अट्रैक्शन, रिपल्शन, क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव, और इसी रिपल्शन के कारण उसकी ट्रेजेक्ट्री बनती है। तो ट्रेजेक्ट्री बनने में जितना ये फोर्स ज्यादा होगा, आप देख रहे हैं जितना r छोटा होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा रिपल्शन का, और जितना फोर्स ज्यादा होगा उतना उसका एंगल ज्यादा बनते जाएगा। सो दिस हेल्प अस टू कैलकुलेट कि ट्रेजेक्ट्री में नजदीक वाला ज्यादा एंगल से क्यों मुड़ता है।
जो नियर बाई होगा उसका आर स्मॉलर होगा, और आर स्मॉलर होने से फोर्स एक्सेस होगा, ज्यादा फोर्स होने से उसका एंगल ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, ये अब उसके बाद ये जो पार्टिकल आता है अल्फा पार्टिकल, उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मेथड्स हैं, उससे हम उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज के। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज के, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? मैं उस समय की बात कर रहा हूं, यहां पर ये अल्फा पार्टिकल यहां आके रुका, फिर वापस मुड़ा। उस समय इसके पास यहां चार्ज कितना है? 2e, ठीक है। इसके पास चार्ज कितना है? Ze। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? फिर से यहां से अल्फा पार्टिकल चला, उसके पास फुल काइनेटिक एनर्जी थी, नो पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे वो इसके पास पहुंचता है, रिपल्शन के कारण इस पर एक फोर्स लगता है और ये यहां आकर स्टॉप हो गया। बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी कहां गई? आंसर, इट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम बॉल को ऐसा फेंकते हैं, यहां काइनेटिक एनर्जी है, ऊपर जाकर रुकी, इस फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। वैसे यहां से ये चला, इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, यहां जाकर रुक गया और वो सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। फिर इस रिपल्शन के कारण ऐसे मुड़ा, स्पीड बढ़ते गई, यहां आके फिर क्या बन गई? काइनेटिक एनर्जी। तो जिस समय वो इस स्पॉट पर था, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई थी, पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी थी? पोटेंशियल एनर्जी में। और वो पोटेंशियल एनर्जी हमको कैलकुलेट करना आता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। Q1 Q2 अपॉन R, ये हमको क्या देता है? पोटेंशियल एनर्जी। और यही पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या थी? काइनेटिक एनर्जी। सो हमने फॉर्मूला लिखा दैट काइनेटिक एनर्जी K is equal to 1/4 pi epsilon naught. Here this is Q1, this is Q2, this is divided by distance d. This is kinetic energy. अब अगर हम इससे d का फॉर्मूला बनाना चाहें तो d कितना होगा? d is equal to 1/4 pi epsilon naught 2ze square divided by k, काइनेटिक एनर्जी। z क्या है? आपको मालूम है, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड और एटॉमिक नंबर ऑफ दैट मेटल। e क्या है? चार्ज। तो उसके न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज होता है? Z मल्टीप्लाइड बाई E। और अल्फा के पास कितना चार्ज होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाई E। इसका चार्ज 2 मल्टीप्लाइड बाई E, इसका चार्ज Z मल्टीप्लाइड बाई E। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, this gives the potential energy and that potential energy is equal to kinetic energy। तो ये फॉर्मूला आया, इसमें से d को हमने ट्रांसपोज किया, दिस इज 2ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k। अब इसमें हमको z भी मालूम है, e भी मालूम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी मालूम है, और जो अल्फा पार्टिकल हम भेज रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी भी मालूम है। तो हम क्या निकाल सकते हैं? d। इस तरह से क्लोजेस्ट अप्रोच की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ये कैलकुलेशन हमने की। ये कैलकुलेशन आपको भी कहा जा सकता है करने के लिए, और हमको डाटा दिए जाएंगे। देयर इज एन अल्फा पार्टिकल विथ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 7.7 million electron volt. This example is given here. Okay, then we have इसको हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं।
1/4πε0 आप सबको मालूम है, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9. Then we have Z for gold, that is equal to 79. E की वैल्यू हम सबको मालूम है 1.6 10 to the power -19. ओके, ये सारी वैल्यूज हमने इसमें रखी और रख के कैलकुलेट किया. सो D फॉर दिस एक्सपेरिमेंट कम्स टू बी 3.84 into 10 to the power -16. 10 to the power -16 to be multiplied by Z. और ये करने के बाद this comes to be 3.0 into 10 to the power -14. So this is D for gold, AU. अगर हम इसको फर्मी में लिखेंगे, so this comes to be 10 to the power -15 is 1 Fermi, so this comes to be 30 Fermi. ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. और इससे हमको क्या पता लगता है कि गोल्ड का न्यूक्लियस इससे बड़ा नहीं होता. ठीक है, इसके अंदर ही होगा. और गोल्ड का जो एक्चुअल न्यूक्लियस निकला दैट वाज नियरली 6 FM, 6 फर्मी. तो पहले हमने ये निकाला रदरफोर्ड ने, इससे हमको आइडिया मिला कि वाकई गोल्ड का न्यूक्लियस इतना छोटा होना चाहिए. और फिर एक्चुअल निकाला तो देखा उतना मिला. तो ये किस चीज ने हमारी हेल्प की? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ठीक है. और उस फोर्स से क्या पता लगता है? इस फोर्स से कि ये दूर और ये ऐसे कम, ये इधर क्यों मुड़ता है और ये इधर क्यों मुड़ता है और ये पूरा क्यों मुड़ता है, ये किसके कारण है? फोर्स. और ये B के कारण जो भी डिस्टेंस होता है उससे इसको एक्सप्लेन किया गया. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट. और इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता लगा? वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन. इसके पहले हमको सिर्फ क्या पता था कि एटम के पास पॉजिटिव और नेगेटिव 2 चार्जेस होते हैं, बस. इससे क्या पता लगा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस किस तरह से लोकेटेड होते हैं. पॉजिटिव चार्जेस सेंटर में सब एक जगह इकट्ठे होते हैं और नेगेटिव चार्जेस इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं. और इस घूमने वाले रास्ते को ऑर्बिट बोला गया. तो इस तरह से इसकी शेप का यहां पर पता लगा. दूसरा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा मिला, यानी एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा मिले, ये हमें पता लगा. तीसरा, हमें ये पता लगा कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन मिलाकर जो एटम का साइज बनता है उसमें न्यूक्लियस का साइज कितना होना चाहिए. न्यूक्लियस का साइज का आइडिया हमको मिला, दैट इज विद द स्मॉल डिस्टेंस, कि जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकाला उससे हमको पता लगा कि न्यूक्लियस का साइज क्या होगा. ये एटम का वो फॉर्मेट था जिसको हम लोग अभी तक स्टडी करते आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद इसमें भी डाउट्स आने शुरू हो गए कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनके पास कुछ एनर्जी खर्च होनी चाहिए, क्योंकि उससे हमेशा लाइट निकलती है. अगर ये एनर्जी खर्च होती है तो वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे प्रोटॉन की तरफ आ जाने चाहिए, न्यूक्लियस की तरफ आ जाने चाहिए. तो इसके बाद और भी इसमें बहुत से डेवलपमेंट हुए जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, किस तरह से इसको रेक्टिफाई किया गया.